Okay, welcome to lecture number two. Lecture number two में first we'll discuss the statutory framework for accounting in Pakistan. पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या स्टैंडर्ड हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको ओवरसी कौन करता है, तो ये तमाम चीज़ें we'll discuss in this lecture. Now, the accounting and financial reporting framework of all companies in Pakistan are stipulated in the Companies Act of 2017. So, this is your main legal document, which is called the Companies Act of 2017. इससे पहले it used to be called the Companies Ordinance of 1984. Now, this is the document Companies Act of 2017, which basically defines the complete legal framework which is in practice in Pakistan. और उस फ्रेमवर्क के तहत जो कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2017 डिफाइन करता है. The Act outlines the requirements for the presentation of financial statements, establishes standard setting procedures, as well as other financial reporting obligations. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है जो SECP के साथ रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो अपनी इनकम स्टेटमेंट कहती इशू करती है, पब्लिश करती है, तो वो इनकम स्टेटमेंट जो है किस फॉर्मेट में होगी, उसमें कौन से अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस तरीके से इशू की जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम चीज़ें ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2017 में डिफाइन हुई भी हैं. अच्छा, all companies are required to prepare financial statements. It is a very generic term. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करनी हो सकती हैं, कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज हैं उन पे ये लागू है, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको पब्लिश करें. और यही जो अंडर द एक्ट है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, उसके तहत जो ICAP है, विच स्टैंड फॉर Institute of Chartered Accountants of Pakistan. ICAP is also responsible for adopting and issuing the auditing standards. Auditing जो है, it is you can say a secondary branch of the accounting industry, जो आगे जाके आप अगले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे. But you should know now, for the sake of knowledge, that ICAP is also responsible for adopting and issuing the auditing standards. Now, what is the accounting framework? Under the Companies Act of 2017, accounting standards are approved for use as adopted by SECP. Accounting standards are approved for use as adopted by SECP. It means SECP जो है वो adopt करता है accounting standards, और वही accounting standards जो हैं वो फिर पाकिस्तान में implement होते हैं. SECP stands for Securities and Exchange Commission of Pakistan. इसका मैं आपको बड़ा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो रजिस्टर्ड होती है थ्रू SECP. जो भी नाम रजिस्टर्ड होता है, it gets registered through SECP. You have to give an application for your name. For your name means the company's name. Once the company's name has been approved, only then you can establish a company as by the rules which have been approved and implemented by SECP. Now, the SECP, however, has delegated the responsibility of developing and adopting accounting standards to the ICAP. It means SECP ने ये जो जिम्मेवारी है ये दी हुई है ICAP को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान. ये क्या करती है? डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Now, what accounting standard has ICAP adopted? ICAP ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS अडॉप्ट किया है, which we will discuss in this lecture and lecture number 3. Under the Companies Act, listed companies
नाउ लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जो बेसिकली आपके स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है, उनको कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। Public interest companies, including public sector companies, public utility companies, financial institutions, and companies in the process of being listed. ये तमाम जो हैं ये इनको ICAP के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर आपकी मीडियम साइज कंपनीज आ जाती हैं, जैसे आपका एसएमई एक टर्म यूज होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल एंटरप्राइज कंपनी कौन सी होती है, मीडियम एंटरप्राइज कंपनी कौन सी होती है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसका स्पैन है, कौन सी कंपनी किस सेक्टर में मानी जाती है। फिर आपकी स्मॉल साइज एंटिटीज होती हैं जो डिफाइंड एज कंपनीज विद पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 25 मिलियन रुपीस। स्मॉल कंपनीज वो होती हैं जिनका पेड अप कैपिटल जो होता है वो 25 मिलियन रुपीस से ऊपर नहीं होता। 25 मिलियन से अगर ऊपर है देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ स्मॉल साइज्ड एंटिटी एंड विद टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियन रुपीस। 100 मिलियन रुपीस से अगर किसी कंपनी का टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा एंड इसका पेड अप कैपिटल जो है वो 25 मिलियन रुपीस से कम है तो इट विल बी कंसिडर्ड अ स्मॉल साइज्ड एंटिटी। फिर आपका जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है 2000 वो स्टैब्लिश करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कौन सी लीगल फ्रेमवर्क यूज करती हैं, वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस ऑफ 2000 है। स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएपी, तो इससे आपको अंदाजा होगा जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का स्टैंडर्ड है वो भी आईसीएपी ही इशू करता है। जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उसमें मेन जो आपकी सेंट्रल फिगर है दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो एसबीपी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग requirements for banks and similar financial institutions. The SBP requires banks and financial institutions to submit audited financial statements prepared and audited according to the standards issued by ICAP. Now we'll discuss the three main professional accountancy organizations in Pakistan. ये जो तीन accountancy organizations हैं ये accounting के तीन different aspects को cover करती हैं। इन्हीं को इनके पास legal राइट होता है कि ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाएं। ये इनके जो मेंबर्स होते हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है, दे हैव द प्रिविलेज ऑफ प्रैक्टिसिंग different accounting functions in Pakistan. For example, the first one that we will discuss is ICAP, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, Institute of Chartered Accountants of Pakistan. It was established in 1961 to regulate CAs in Pakistan, and its functions are established under the Chartered Accountants Ordinance of 1961 and ICAP bylaws of 1983. Now, ICAP की responsibilities क्या हैं? Establishing initial professional development IPD and continuing professional development requirement for CAs के जैसे एक सीए जो है विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी आईसीएपी ही डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आप इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव टू continuously develop your knowledge base, your skill set in order to remain a member of it. For example, अगर कोई एक CMA का मेंबर है, एक वन if someone is a certified management accountant, तो उसको जो CMA की अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं या आफ्टर सम टाइम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स अराइज होती हैं उनको उसके लिए कवर करना जरूरी है। फिर आपका हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि एससीसीपी अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी करती है। अब on the members of ICAP are permitted to audit the financial statements of all companies. अब ये important है, it means कि if as a professional accountant if you are a member of ICAP it will give you certain privileges that other accountants do not have. Then the second one is Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, ICMAP. It was established in 1951
इसका जो स्टैचुरी स्टेटस है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1966 है। आईसीएमएपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान का, उसको आईसीएमएपी कवर करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका थर्ड वन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, पिफा। PIFA was established in 1993 under Section 42 of the Companies Ordinance Act 84 and is licensed by SCCP। अब ये तीनों जो हैं, ये जो अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इन तीनों का अपना अलग रोल है, इन तीनों की अलग जगह है। When you talk about the accounting and auditing industry in Pakistan, so all three of these play a major role in the accounting and auditing scenario in Pakistan. Now we'll discuss the IAS and IFRS. What is IAS? IAS stands for International Accounting Standards. These were the first international accounting standards that were issued by the IASC. IASC, which is International Accounting Standard Committee, was responsible for issuing the IAS International Accounting Standards. इसका गोल क्या था? वो था to make it easier to compare businesses around the world, increase transparency and trust in financial reporting, and foster global trade and investment. जैसा आपको पता है दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त एज पर सम न्यू फिगर्स, इस वक्त दुनिया में 210 कंट्रीज हैं। अब 210 कंपनीज के अपने फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रेगुलेशन होंगी, उनके अपने एथिक्स होंगे। तो इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इस पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए IAS बना था। उसका मकसद था कि तमाम कंट्रीज जो हैं इफ दे follow the rules of IAS, so it will be easy for someone to compare the financial statements of let's say Belgium with Norway। तो ये मकसद था IAS का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड आपका आया था वो आपका था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इन दोनों के बीच में क्या लिंक है वो मैं आपको लिंक बता देता हूँ। IAS stands for International Accounting Standards, while IFRS refers to International Financial Reporting Standards। IAS जो है उसके स्टैंडर्ड्स आए थे 73 और 2001 के बीच में। जो IFRS के स्टैंडर्ड्स आने शुरू हुए थे वो 2001 के बाद से हुए थे। IAS standards were issued by IASC, while IFRS are issued by IASB, जो अब मैं आपको बताऊंगा, which succeeded the IASC। It means जो इंटरनेशनल IASB है, ये IASC का you can say it is a new name। The principle of IFRS take precedence if there's contradiction with those of the IAS, and this results in the IAS principles being dropped। इसका मतलब है कि जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड था वो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक कंटिन्यूएशन ही थी। उनको इसने एक नया नाम दिया, उसको इशू करने वाली बॉडी एक नई बनी जिसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये जो एज ऑफ टुडे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द IFRS। इसी तरह जो अमेरिका में है that is called the Financial Accounting Standard Board, and FASB जो है वो अमेरिकन सिस्टम जिसको गैप कहते हैं उसको इशू और इम्प्लीमेंट करती है। तो these specify how companies must maintain and report their accounts, defining types of transactions and other events with financial impact। तो बेसिकली IFRS इन तमाम चीजों को डिफाइन करती है, उनको मेंटेन करती है, उनकी रिपोर्टिंग को रेगुलेट करती है, ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है, और तमाम वो इवेंट्स विच कैन इफेक्ट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनको भी IFRS ही करती है। IFRS are used in at least 120 countries as of 2020, which in fact this figure now is 144। इस वक्त 144 कंट्रीज हैं जिसमें IFRS implement हुआ है। So you can well imagine कि it is
a standard which is in fact you can say pretty much universal. ज्यादातर दुनिया में यही यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि यूएसए में गैप यूज हो रहा है तो हमारे लिए जरूरी है हम गैप को भी स्टडी करें कि व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द गैप. Now, अब मैंने आपको what I have done, I have told you the accounting framework in Pakistan. Then we have discussed IAS. Then we discussed IFRS. Now, in the next lecture, we will discuss the different standards as per the IAS and IFRS के उनके कौन-कौन से standards हैं और उनकी इस वक्त as of today उनकी क्या लीगल स्टैंडिंग है इन द अकाउंटिंग इंडस्ट्री.